Hi everyone, I'm Pooja Choksi. I'm a restoration ecologist. Hi everybody, I'm Sahana. I'm a journalist at Mongabay, India. So we'll be co-moderating today's panel on restoration in India, and we're trying to bring together the big picture view of restoration and some stories from the ground. So I'm going to let you introduce the panelists. So today we have with us, right in front of me, I can see Dr. Shalini Dhyani from CSIR Miri. Please raise your hand, Shalini. Hi, say hi to Shalini, please. Yeah. Next to Shalini is Amin Charles from the Community Development Center at Balaghat. Say hi to Amin, folks. Then next we have Somik Banerjee from the Keystone Foundation. Say hi to Somik, please. And the next we have Kedar Gauri from the Corbett Foundation. Say hi to Kedar. So I would encourage all of you to go through the booklets to read more about them, to see what they do, regarding their powers. You'll find more information in the booklets. Now, how we are going to run the show is we let the panelists speak on specific topics on restoration, and then we'll open the floor to Q&A for 15 minutes. Okay, I'm going to start this off. And the first question is for you, Shalini. So India's powering through with restoration actions to enhance its carbon sink. And could you give us a really quick, brief overview of India's NDC goals and what their current status is? Thank you, Pooja. I think first I should thank Professor Ruth to invite me here. This is my first NCCI this event. And I was not so aware about the entire group that's present here, so I really learned a lot from all of you. Now coming back to the question, because I just have 2 minutes with me. I per se am not a very NDC person, but I should raise some of the concerns here. You know that in August 2022, government has actually submitted the final 2-page report that what our final NDCs will be. So there is something how they are going to decarbonize by 2070, and then they have to reduce 45% of emissions. Disclosure? Yeah. By 2030, and then there will be 50% the energy coming from non-fossil fuel sources. But the important one is the restoration that is promised about 2.5 to 3.0 trillion carbon dioxide equivalent that has to be fixed in forest or tree outside forest areas. But this is something that has enhanced their target. So they have already promised something under the Born Challenge that has raised up to 26 million hectares. So if you see, just giving a little brief on, that India and China are the biggest areas holding the largest land degradation in the world. So at the same time, if you see this target, this is quite small of a target that is projected, and it also requires a lot of climate financing to make it realized on ground. So this is a small picture that I just wanted to throw through the snippets, like this is how NDCs are. And then government is actually targeting a lot inside and outside the forest area. So yes, so this is a brief about that. So thanks Shalini for giving the larger picture. Now larger picture से हम लोग आ जाते हैं at a more local scale. So my question to you Shalini is ये जो local scale NGO led restoration ये जो local scale NGO led restoration efforts हो रहे हैं, तो how do you see them intersecting with government driven efforts aimed at NDC goals? So well, I sit with one of the government organizations, and I must say when you talk NDCs, the government driven targets are not directly given to CSOs or NGOs. They are coming to the biggest industries, the public and private sector industries who are active. And while I'm sitting here, Kana is just one protected part, but if you see the larger picture of central India, you see the bigger concern of mines, both private and public sector, and they have their own level of compliance. So these NDCs are not directly translated. NGOs are doing what they are doing, and I see a lot of good success stories here and there,
but then you don't know like how to replicate them further and enhance them in the broader landscape. So when I was discussing just with a few of us, and I think we are missing discussions on private and public sector, who are the biggest degraders, and at the same time giving a lot of power concerns and addressing the power concerns of the country that's more of a developmental concern. So I think this needs to be very much in picture when I talk about NDC, be it thermal power or your mining or your steel industry or any other industry. So yes, my answer, direct question to this is, I know because I started my work from communities, so there are a lot of these success stories across the region about how NGOs are creating, how communities are creating, but you don't know like how to upscale them and outscale them. Thanks, Shalini. I think that's a question on everybody's minds. There's so many great projects, and we're figuring how to upscale all of them. So I think on that note, it'll be good to zoom in a little bit. And Amin works, you work on home gardens around in this Karma landscape. And what do you think these small scale activities such as home gardens and smaller community forests play in meeting India's restoration goal? So how does it all contribute to the 26 million hectares that we need to achieve to restore? देखिए, ऐसा है कि शुरुआत तो छोटी सी चीज़ों से ही होती है, और जो आप होम गार्डन की बात कर रहे हैं, दरअसल ये सिर्फ होम गार्डन की बात नहीं है। हम तो मतलब आप जब भी ये रेस्टोरेशन और इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं ना, तो मतलब हम लोग, मैं करीब 10 साल पहले जब यहाँ पे 10-12 साल पहले जब गाँव में थे, और आज कल से या आज दिन में जो बातचीत हुई है, तो बहुत सारी चीज़ें तो कंफ्यूजिंग है। मतलब कंजर्वेशन ठीक है, कम्युनिटी कहाँ है, बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग। और उसमें एक गांव में जब हम थे और वहाँ पे बहुत सारे बहगाँव की बात होती है, तो वहाँ पे मतलब एक काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने पूछा कि मतलब उन्होंने अपना अनुभव बताया कि एक शेर मर जाएगा तो अभी सारे लोग यहाँ पे पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सारे लोग आके खड़े हो जाएंगे, लेकिन एक कम्युनिटी का व्यक्ति अगर उसकी डेथ होती है तो कोई आता नहीं। तो बात इन मतलब ये है ना कि वैल्यूज़ की है कि आप किसको वैल्यू कर रहे हैं। और ज़रूरत है कि ठीक है, कंजर्वेशन भी उतना ही ज़रूरी है, मतलब हम जिस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, तो ये बहुत। और जब हम कम्युनिटी में इन सारे मतलब किसी भी चीज़ के रेस्टोरेशन की बात कर रहे हैं, तो सुबह भी बात हो रही थी, और जो यहाँ पे अर्थ फोकस के जो लोग थे उन्होंने बात किया, तो ये सिर्फ पेड़ या कुछ चीज़ों के संरक्षण की बात नहीं है। इसमें तो फिर लोग हैं और लोगों की परंपराएं हैं, लोगों का भोजन है, उनके रीति रिवाज हैं, इन सारी चीज़ों को देखने की। और ये हर क्षेत्र के लिए के लिए अलग अलग हो सकता है। आप किसी चीज़ को जो मैं कर रहा हूँ वो कहीं और जाके उसको स्केल अप नहीं कर सकते। मतलब इसको थोड़ा हम लोगों को गंभीरता के साथ देखना चाहिए। मतलब हर विविधता बहुत सारी, हम जैव विविधता की बात करते हैं, और अब जब तक कल्चरल मतलब लैंग्वेज और बहुत मतलब किस चीज़ को आप नहीं करोगे, मतलब हर चीज़। दोपहर में जैसे सर आपने पूछा था कि कितना प्रोडक्शन, मतलब अगर ऑर्गेनिक करते हैं तो वो मैं आपके उस दिन पर कल की बात किया, कितने बाग और चाहिए, तो कितना प्रोडक्शन और चाहिए। तो हम ऑर्गेनिक या इन सब चीज़ों के ऊपर फंसने की बजाय कि हम थोड़ा कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्व हों। और ये कोई एक कुछ समय में कुछ दिन में होने वाली चीज़ें नहीं है, इसमें काफ़ी समय लगता है। और बात यह है कि ज़रूरत किसकी है, लोकल कम्युनिटी की है या आउटसाइडर्स की है। और जो अमृता जी बोल रही थी कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो तो आउटसाइडर्स क्रिएट करके जाते हैं, और उसको जिसको वहन करना पड़ता है वो। तो इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जब तक आप गांव में बैठ के समझेंगे, बहुत सारे रिसर्च और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो वो नॉलेज, वो ज्ञान की भी ज़रूरत है। लेकिन जो ज्ञान गांव में है उसको और इसको कैसे आप क्लब कर सकते हो, कैसे
कैसे आप जोड़ सकते हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सारी चीज़ आप वहाँ से ला के यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उसको आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जी धन्यवाद अमीन, आपने बहुत बढ़िया बात कही, आपने परंपराओं की बात कही। तो उसमें एक क्वेश्चन आता है सौमिक के लिए। सौमिक, आपका काम शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ट्रेडिशन पे फोकस करता है इन छत्तीसगढ़, टू रिवाइव ट्रेडिशनल एग्रो बायोडाइवर्सिटी प्रैक्टिसेस। अब आप इस काम को कैसे देखते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज रेस्टोरेशन गोल्स एंड टारगेट्स? जी धन्यवाद। शिफ्टिंग कल्टीवेशन उनका पारंपरिक आजीविका है और उसमें कई सारे फसल उगाए जाते हैं। जैसे आपने बाहर मिलेट्स भी देखे होंगे, मिलेट्स के साथ पल्सेस, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, इवन फाइबर क्रॉप्स भी रहते हैं और इसके साथ पेड़ पौधे भी रहते हैं। आइडिया उनका बहुत पुराना है और अभी रीजेनेटिव फार्मिंग में भी हम लोग इस तरह के विषय पे बात कर रहे हैं, जहाँ पेरिनियल रूट्स है, जहाँ पे वेजिटेटिव कवर है और ये पूरी तरह ऑर्गेनिक सिस्टम्स में किए जाते हैं। इसमें मैन्योर भी नहीं डाला जाता है, इसमें प्लाउइंग भी नहीं किया जाता है, ये जीरो टिलेज सिस्टम है। और इससे जो अनाज आ रहा है वो उनके कल्चरल और न्यूट्रिशनल डाइट पैटर्न्स में है। तो ये सिर्फ एक इकोसिस्टम का रिस्टोरेशन की बात नहीं, उनकी कल्चरल, उनका जो रिलीजियस जो इंटेग्रिटी है, ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड है। उनका घर के फर्नीचर्स भी उससे बन रहे, क्योंकि फाइबर क्रॉप्स भी वो लोग लगा रहे हैं। और इससे रेस्टोरेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि जब वो 2 साल खेती करते हैं उसके बाद वो जंगल होने के लिए छोड़ देते हैं। अगर हम कुछ कम्युनिटीज़ का हमने स्टडी किया है और अभी चल भी रहा है, एक झारखंड की कम्युनिटी है पहाड़िया, उसमें राजमहल पहाड़ में वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। अगर आप फोटोग्राफ देखेंगे तो आपको जंगल वहीं नज़र आएगा, आसपास के सारे जंगल कट चुके हैं। तो उनके लिए जंगल वापस आना बहुत ज़रूरी है और जब तक जंगल वापस नहीं आएगा उनकी खेती अधूरी है। तो इसीलिए ये रेस्टोरेशन का बहुत बड़ा इसमें रोल है और ये मिलियंस ऑफ हेक्टर्स में हो रहा है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में भी, आंध्रा, इन सब एरिया में कई जगह हो रहा है। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे ही मुझे पूछना था आपसे। तो आपके काम में आपके लिए सबसे बड़े चैलेंजेस कौन से हैं? मतलब अभी हम बस देख रहे थे कि इन्वेजिव्स का काफ़ी अभी चल रहा है, इन्वेजिव रिमूवल, फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए जगह भी बहुत चाहिए होती है। तो आपके काम में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं और लोग कहाँ, मतलब लोगों को चैलेंज क्या लगता है आपके जो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन वापस अडॉप्ट करने में? तो मेरे रिसर्च में तो एक दूसरी चैलेंज है, उस पर मैं अभी बात नहीं करूँगा, पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन अभी भी वो लोग कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि उन्होंने छोड़ दिया है। जो कम्युनिटीज़ का मैं बात कर रहा हूँ उनके वहाँ पे वो रेगुलर प्रैक्टिस है, उनका मेजर लाइवलीहुड है। और इन्वेसिव्स की जहाँ तक बात है तो ये भी मैंने एक छोटी स्टडी की थी जहाँ पे यूपाटोरियम जो क्रोमोलियाना ओडालाटा है उसको वहाँ पे वो लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि वो वहीं पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना प्रेफर करते हैं जहाँ पे ये वीड है। और इसीलिए क्योंकि उस वीड को रिमूव करना ज़्यादा इजी है और उनके रोटेशनल टाइम्स कम हो जाते हैं और उसके लीव्स जो वहाँ पे सॉइल में जा रहा है उससे वो बताते हैं कि उनके यील्ड्स बढ़ गए हैं। तो वो रैदर देन कि जो दूसरे फॉरेस्टेड एरिया है वहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करके वो ऐसे जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे ये वीड्स ज़्यादा मात्रा में है। तो एक तरह से ये वीड्स का एक एक्सीडेंटल या अननोन टाइप का मैनेजमेंट हो रहा है जो वो भी नहीं समझ रहे, और इसको मेरे ख्याल से और स्टडी करने की ज़रूरत है। हमने एक छोटी स्टडी किया था, वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वो उतना एक्सपेंड नहीं कर पा रहे। अगर वो वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं करते तो शायद और बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर जाता। तो इस तरह से हम समझते हैं कि इन्वेसिव्स को भी मैनेज किया जा सकता है उस तरह के लैंडस्केप्स पे। और दूसरे एरियाज में लैंटाना है, जैसे अगर आप बैगाचक एरिया में देखेंगे वहाँ पे लैंटाना है, राजमहल हिल्स में यूपाटोरियम है, और जो अभी एग्जिस्टिंग एरियाज में मैं स्टडी कर रहा हूँ उसमें दोनों हैं और उनके आपस में भी कंपटीशन हो रहा है दोनों वीड्स के बीच में।
The next one is for you, Kedar. So, with the recent developments at COP15, how do we factor in biodiversity in our restoration activities? Especially when the restoration has been carried out, say, to increase green cover in the country or to enhance livelihoods. Firstly, thank you for having me on this panel. See, all these international commitments that anybody makes, with due respect, I don't take them very seriously. Because in the last decade, we have not achieved, or no country in this world has achieved anything that they set a target for. Now, again, in the next decade, they have set some very high targets. As Shalini said, 26 million hectares of land by 2030. At the same time, every year, at least 10,000 to 15,000 hectares of forest or wildlife habitat is being diverted for non-forest use. I find this really a paradox. Anyway, so getting back to how we are dealing with restoration efforts. The Corbett Foundation looks at conservation in a holistic way. Community participation, and that's a main, one of the objectives of any of our conservation work. And when we think of anything in terms of conservation, community benefit has to be there, and participation. So when we looked at restoration of the landscape, we have been working in Ghana and Bandhavgarh landscape since 2009. Especially in Bandhavgarh-Sanjay corridor, there are so many patches of technically forest land, but there is no forest on that. They are actually maidans. And there were forests, it's not like they were track grasslands and grasses have gone. So it always came into my mind that unless we start doing something, we may fail, we may not be doing everything correctly, but we will start something. And with that, we talked to the forest department, and we started doing the restoration work in 2018. So far we have done 200 hectares. In the next financial year, 250 more hectares will be taken up. So restoration, we looked at planting the indigenous species, removal of invasives, per hectare about 1 ton of invasive species have been removed. And when we looked at the grass production after that, because that we allow the community, who are we to allow, but the community, since it's a forest department land, forest department allows the community to harvest grass. So at least 1.5 to 2 hectares, 1.5 to 2 tons grass is harvested by the community. So it's a win-win situation. And all the plantation, everything is done by the community here. So it's a participative approach. केदार की बात से मेरे मन में एक प्रश्न है फॉर बोथ अमीन एंड सौमिक, वो है ये जो COP15 या यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस की हम बात करते हैं, ये नेगोशिएशंस दूसरे देशों में सब हो रहा है, तो आपके काम में, दोनों के काम में विद द कम्युनिटी इसकी गूंज आती है? क्या आप लोग उसको मद्देनजर कभी रखते हो, या आपको क्या लगता है कि ठीक है ये तो गोल्स सेट हुई हैं, बट ऑन द ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है? क्या प्रैक्टिकली क्या हम लोग ये गोल्स अचीव कर पाएंगे? अब किस कम्युनिटी की, मतलब उनके लिए उनका गोल क्या है? मतलब वो सुबह उठना है, दिन भर के लिए वो अपना गोल रोज सेट करते हैं। आप 2030 की बात कर रहे हैं। राउंड ऑफ अप्लॉज। हम अब हर चीज को ला के वो सीधा उनके ऊपर गोल ठोक देंगे ना, तो उनको कोई मतलब भी नहीं है। सीधी सी बात है कि, और आप उनको गोल समझा के भी क्या करें? उनके लिए जो जरूरी है, मेरे ख्याल से, मतलब आप ये सोचिए ना कि उनकी, मतलब कोई भी कम्युनिटी है, उसकी संस्कृति या उसकी
उन चीज़ों को बचाने के लिए। आप भाषा को भी अगर देखिए, ठीक है, भाषा विलुप्त हो रही है, उनकी बोली से, उनके खाना और उनकी पूरी जो जीवन शैली है वो प्रभावित हो रही है। आप मतलब इसको थोड़ा सा कल्पना करिए। और हम हिंदी मतलब उनकी मातृभाषा भी खत्म हो जाएगी तो उनका जो नॉलेज उनकी भाषा में था वो तो शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और जरूरी है कि बजाय उनको ये मतलब टारगेट्स और ये हम अपने तक सीमित रखें और हम उनके साथ क्या कर सकते हैं उसको देख के फिर चीजें कर सकते हैं। मतलब जैसे हम लोग सुबह इनके नॉर्थ फोकस वाले एरिया में थे, परिस्थितियां लगभग समान है। मतलब जिस तरीके से हम लोग जहाँ काम करते हैं वो भी नहीं। मैं वहाँ बच्चों के साथ, स्कूल के बच्चों के साथ बात कर रहा था, तो मतलब जब मैं गोंडी में बात करता हूँ तो बच्चे थोड़े और सहज हो जाते हैं और हिंदी के बहुत सारे शब्द भी वो नहीं जान पाते। मुझे लग रहा है कि हमको बहुत समग्रता के साथ देखने की जरूरत है कि ये सिर्फ मतलब कुछ चीजों के लिए नहीं है, कल्चर है, उनका खान पान है और होलिस्टिकली हमको देखना चाहिए जरूर। ये सब। तो इस बात पे मैं सौमिक से पूछना चाहूँगी, आपके काम में क्या ये सब गोल्स वगैरह की गूंज आती है? मेरा भी सिमिलर आंसर है, उनको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। उनको तो कई लोगों को तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है वो भी नहीं पता है, कितनी गलत लेवल पे है। तो इसीलिए उनके लिए रैदर वही है कि उनका जो इकोसिस्टम है, उनका जो जंगल है, उनका जो जंगल के साथ उनका जीवन शैली और आजीविका जिस तरह जुड़े हुए वो बरकरार रहे, वो ठीक रहे, वो उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन वो छूटता जा रहा है बिकॉज चाहे वहाँ खनन हो रही है या ये जैसे मैं बता रहा था कुक फिलिंग हो रही है, तो इसके चलते उनका ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है। और बाहर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या मीटिंग्स हो रहे हैं, उसका क्या नतीजा निकल रहा है, उससे तो बिल्कुल ही बेखबर है। So I had a follow-up. I think आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट निकाला कि उनको हर दिन का प्लान वो सुबह बनाते हैं और हम यहाँ 2030 की बात कर रहे हैं। तो I think this is an open question. Shalini also, how do we make the levels talk to each other? जैसे अमीन जी और सौमिक जी बोल रहे हैं, केदार आप भी ज़्यादा लोकल देख रहे हैं, और how do we make people working at the sort of international level talk to the people working at the grassroots level, जो जानते हैं problems लोगों की और restoration कैसे करना चाहिए? One thing I do want to point out here is all the local restoration efforts, whether we have done it or many of us are working on this, unfortunately are not reflected when the government of India puts together all the restoration efforts. So that is the first thing that should happen. Whatever little anybody is doing must find a place in the government efforts. I mean, this is 26,000, whatever that figure is, 26 million hectares. It's not, it's a high number. However, it's not difficult or impossible, but it needs a coordinated effort. First thing is, it should be recognized by the government. So sorry, can we switch mics? Something scientific organizations are doing, it's something academicians are doing, and they are developing some very good restoration strategies. They're very good. And then when I watch what community-based or NGOs are doing, I think at the end of the day, it has to boil down to the ground level, because whatever we do, you need participation. Government does something, government promises something on behalf of the entire country, has to get contribution from right at the very ground level. But as they both mentioned, I remember some almost 1.5 decades back when I started my work, not here in Uttarakhand, I was asking people what is Kapha. Do you understand climate is changing? And they said, what's that? Climate change क्या है? जलवायु परिवर्तन क्या है? हमको नहीं पता है. हमारे धारे सूख रहे हैं, हमारे जंगल सूख रहे हैं, ऐसी चीजें जो हमको पता है.
तो ये जो साइलोज हैं जिसमें मुझे ऐसा अभी तक जो मेरा अपना इतना टाइम रहा है जिसमें मैंने डिफरेंट सेक्टर्स के साथ काम किया, ऑफ कोर्स प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट, academicians, research organizations and NGOs, I feel they bring a different kind of energy to this platform. They have their own understanding. If I say we as research organizations know everything, maybe we don't know. Because we might understand what is scientifically good for that area, but we don't know what, according to people, is good for that area. So I have been always thinking about a demand-driven kind of a restoration approach that understands the concern that communities have been facing. So for example, I might be planting, as per Government of India put some strategy, like आपको ये वाले इतने मिलियन हेक्टेयर या इतने 1000 हेक्टेयर रिस्टोर करने हैं. So the industry might have a strategy, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाना है, उसको कुछ बताना है, और if you know these industries have just 1% of profit that has to be translated down on ground, और उसमें भी maybe even it's less than 50% of that 1% that goes on restoration. तो उनका काम सारा कॉन्ट्रैक्ट ड्रिवन चल रहा है, तो उनका मेन आइडिया है कि हम जो भी लगाएंगे वो सैटेलाइट से दिखना चाहिए, दैट्स माय कंप्लायंस. तो रेस्टोरेशन की जब बात आती है, आई मूव टू केदारनाथ. अगर हमारे प्रोजेक्ट के बारे में कहूँ तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लैंड है, दे विल अलॉट अस फॉर से 5 years और मैक्सिमम 7 years. उसके बाद बोलेंगे हमको लौटा दीजिए. सो वी विल give back the land in restored form. However, that land needs to be retained in that form for next 20 years or even more. तो वो कैसे होगा? अब उसमें एक चीज़ जरूर होनी चाहिए कि कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट. अगर हमारे पास अगर CSR फंड आया है for 5 years, that company should realize कि it's not just about सैटेलाइट में क्या दिख रहा है, but लॉन्ग टर्म मेरी कमिटमेंट हो सकती है क्या कंपनी की टू इंश्योर कि वहाँ पे रिस्टोर्ड हैबिटेट रहे, वाइल्ड लाइफ के लिए, ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी के लिए, लोगों के बेनिफिट के लिए. दूसरा कि लोगों को ऑल्टरनेटिव्स होनी चाहिए, क्योंकि अगर उस लैंडस्केप में लोग रह रहे हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन द लाइवस्टॉक ग्रेजिंग देयर, दे आर डिपेंडेंट ऑन फॉर फ्यूल वुड, और पेड़ काट के उनकी बायोफेंसिंग कर रहे हैं. तो इन सबको अगर ऑल्टरनेटिव हम नहीं देंगे तो वो रेस्टोर्ड हैबिटेट भी आफ्टर पॉइंट में भी वो खराब ही हो जाएगा, क्योंकि वो जो डिग्रेड हुआ था, it wasn't because there was a linear infrastructure, at least in our case. So it was anthropogenic pressure. So अगर उसको हम एड्रेस नहीं करेंगे in our solutions long term, तो वो फिर से वैसे ही चला जाएगा. So it's a challenge. अभी तो हम कुछ हमारे एनुअल रिपोर्ट में छपा है कि हमने रिस्टोर किया है, बट आई एम कंसर्न कि आगे 10 साल 20 साल के बाद क्या होगा. एंड इट्स समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू फाइंड सॉल्यूशंस, बट इवन विद द कॉर्पोरेट सेक्टर वी कांट रियली हैव द एश्योरेंस कि फॉर द नेक्स्ट 10 years आई विल बी सपोर्ट योर प्रोजेक्ट और व्हाटएवर इट इज. सो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न. दूसरा एक कंसर्न ये भी है कि lot of times projects get sanctioned with the forest department or with any government agency because that person is interested, the DF or the TCCF. When the person changes, the priorities may change. So sometimes we are, or NGOs are accepted with open arms. Next day they may be told, we know everything and we don't need to come here. So this is a very, very important challenge I think all of us in this room have faced sometime or other. That's why you emphasize that these efforts should be recognized. Bring some recognition to these efforts in an official, in a legal way. Yeah, it has to come from top down actually. Thank you, Kedar, for that. I think we're going to start asking some last big picture questions. What is your vision for a dynamic landscape such as Central India in terms of restoration and permanency of restoration? So that's where interventions of organizations required that need to be very much there. And I don't have as such a bigger picture to project to all of you in this discussion, because I think it's where I understand something and there's something that Kedar understands or he bring into this platform.
that needs to be combined together and like joining these dots to bring that bigger picture of how should brand like this, how this dynamic landscape should look like. So unfortunately, I don't have a clear answer to this question, but I see a lot of scope because we all come from different backgrounds here. So by discussions, I could see there's something that I'm learning, there's something that you are learning from me that can help to complete and suggest something that can really be helpful beyond these protected areas, outside these protected areas. अब ऐसा है कि आप विजन की बात कर रहे हैं, तो मैं तो ये बोलूँगा कि जो आदिवासी होते हैं आप उनको जंगल दे दीजिए, बाकी वो सब कर लेगा, और वो हो नहीं सकता, वो कोई छोड़ना नहीं चाहिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं छोड़ना चाहिए, और हम लोग भी हम बोलेंगे ये थोड़ी मैनेज करेंगे तो बर्बाद करेंगे। दरअसल मतलब एक तो ये है ना कि सोच को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है, और जिस तरीके से खेती हो रही है वो बहुत व्यावसायिक हो गई। 2022 तक सारे सबकी डबल इनकम होनी थी, जो खेती को जो आदिवासी वो पेट अपने जीवन यापन के लिए करता था ना, वो बहुत व्यावसायिक हो गई, और हम लोग यही चाह रहे हैं कि वो भी व्यावसायिक खेती करे। क्यों करे? आप मतलब हम लोग जो छोटे छोटे इनिशिएटिव करते हैं, हम लोग जैसे गढ़ी में हम बीज, उनके जो बीज हैं हम वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और लोग भी उसमें लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ बाकी लोग जो हैं जिनके साथ हम काम नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे पता चला कई क्विंटल हाइब्रिड धान वहां पे बिक रहा है, उसका बीज बिक जा रहा है। तो ये जो मार्केट की फोर्सेस है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इन सब चीजों के बीच में आप इस तरीके की चीजों को आप सोच रहे हैं, ये बड़ा चैलेंजिंग है, ये इतना आसान नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। और उन लोगों के पीछे मतलब जो वास्तव में जिन लोग जो वहां पे हैं, जिन लोगों के साथ ही काम करना है, उनका भी, उनके विजन के बारे में उनको भी थोड़ा सुनना चाहिए, सोचना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। मेरे अपने सोचने से या पॉलिसियां बना लेने से चीजें नहीं है, और अगर उनकी जिंदगी या उनकी लाइफ को बर्बाद करके चीजों को ठीक करना है तो अलग बात है। मुझे ये लगता है मतलब जो लोग यहाँ ओरिजिनल वसीले बहुत साल से रह रहे हैं और उनका जो लैंडस्केप है उनके व्यूज़ लेने चाहिए, वो कैसे चाहते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ ये भी देखना चाहिए कि बहुत सारे चीज़ें अभी इन्फ्लुएंस्ड भी है बिकॉज ऑफ मीडिया या आसपास जो चीज़ों से। हो सकता है कि वो उनको अभी अच्छा लग रहा है लेकिन उसके कुछ और रिपरकशन से, तो उसको उनका व्यूज़ लेने चाहिए और उसी के हिसाब से कुछ हम लोग को प्लान करना चाहिए। लेकिन जो रिसर्च से जो आ रहा है और जो और इंफॉर्मेशन इधर से आ रहा है, जहाँ से भी जो फील्ड एक्सपीरियंस है उनको भी इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है। सिर्फ एक्चुअली आइडिया वही होता है कि हम कम्युनिटी के व्यूज़ को लें, लेकिन क्योंकि वो व्यू भी आज कलर्ड हो चुका है अलग अलग कारणों से, तो और सारे अप्रोचेस को देखते हुए एक अप्रोच बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसा होगा उनके पता नहीं, ऐसा हम लोग सोच तो सकते हैं पर विजन तो कुछ और ही है शायद इस रीजन के बारे में जो हमें पता नहीं है और शायद इम्प्लीमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन से। ये सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप में रेस्टोरेशन का एम्पल स्कोप है। ओनली इन शेडोल डिस्ट्रिक्ट आई एम टोल्ड that more than 10,000 hectares of degraded forest land is available for restoration. So, अगर हम coordinated efforts करें, you know, with the companies and make them understand that don't just get to tree plantation. So, of course, tree plantation like फिर वो कहीं पे भी हो सकता है, and then you know exotics are planted. It doesn't add any value to the biodiversity conservation. But there are few companies whom we work with, they are convinced, I am sure there are many more who can be convinced if we all work together, target an area, a landscape, and just put out in the open that, okay, this is available for restoration, support. But इसके लिए काफ़ी effort लेने की ज़रूरत है,
but it is a very, very promising landscape. And the other advantage is, I mean, we have to also think from the sponsor's point of view. क्योंकि अगर वहाँ पे restoration किया है तो उनको visibility भी चाहिए. We can't say that after 20 years there will be tiger roaming here. No, उनको चाहिए visibility. Let's accept that. And with what we have done in 5 years, you can show the visibility definitely, and people do accept it. So we have to put together all the thoughts of the donors, implementers, policymakers, and then move ahead. थैंक यू केदार फॉर दैट. सो बेसिकली हमने ये जाना कि सबके सब कन्वर्जेंस में काम करना एक बड़ी बात है. टारगेटिंग अ लैंडस्केप इज रियली इम्पोर्टेंट. हमने ये सुना कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से भी कैसे मैटर करते हैं, कम्युनिटीज़ का परसेप्शंस, कम्युनिटी का रिएक्शंस. फिर हमने ये भी सुना कि हमारी भावनाओं में, चिंताओं में बदलाव आनी चाहिए. और शालिनी ने बताया कि हाँ, इट्स डेफिनेटली अ टफ क्वेश्चन. सो हमें ये सब हमने इसके बारे में ये समझ में आया है कि लैंडस्केप में ऑब्वियसली बहुत डायनामिज्म है और बहुत स्कोप है ये सब काम का, एंड कन्वर्जेंस इसमें ज़रूरी है. तो मैं ये पूछना चाहूँगी आप सब लोगों से कि ये जैसी प्लेटफॉर्म है NCCI, तो NCCI प्लेटफॉर्म का क्या रोल है? What role does NCCI play in fostering restoration? So I would like to hear from each of you on this. Yeah, please go ahead. I think it's a great platform because we all have been a part of this for the last so many years. It brings people from different walks of life, together and discussing one issue, which is conservation or connectivity, conservation, restoration, whatever it is. Especially the researchers who are there, they should they must develop a vision that these are the issues. I mean, okay, I do my dissertation, my research is over in 6 months or 1 year, but my long-term vision should be, okay, next 10 years, this is where I need to reach. But this is where I need to do these 2, 3 things, which I have heard as a part of CIRS 1, 2, 3, 4, 5. And so I think if that happens, then the whole effort that the NCCI takes in organizing CIRS is a success. And whatever everyone has contributed will reach the right place. So केदार, आप बता रहे हैं कि यहाँ पे जैसे people are there from all walks of life and we need to have a long-term vision. NCCI needs to have a long-term vision, right? It has a long-term vision. It has a long-term vision. Yeah. All participants also should have that. All participants should have that. Now, Sumik, आपका क्या कहना है आपका? हाँ, NCCI में जिस तरह का स्टडीज हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, और उनको अगर हम लोग कन्विंस कर सकते हैं या उनको कुछ ऑप्शंस मॉडल्स या इस तरह के क्रिएट करके अवेलेबल कर सकते हैं कि उनका माइंडसेट और उनका जो प्रेजेंट अप्रोच है वो चेंज हो, तो मेरे ख्याल से इस लैंडस्केप में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं. लेकिन सिर्फ अगर हम लोग अपने ग्रुप में ही रहेंगे तो शायद वो चीज़ें नहीं होगा. इसीलिए जो और डिपार्टमेंट्स है और एजेंसीज है और कम्युनिटी, इनको साथ में ला के और जो रिसर्च से जो निकल के आ रहा है, फील्ड एफर्ट्स से जो निकल के आ रहा है, उसका एविडेंस और उनके मॉडल्स को उनको सामने रखना चाहिए और उसका कैसे हम उसको और बढ़ा सकते हैं, ये अप्रोच इसीलिए काफ़ी स्कोप है इस तरह के. सो मेरा आउटरीच की बात कर रहे हैं कि जो भी रिसर्च फाइंडिंग है वो डिस्टिल करके आउटरीच किया जाए ताकि गवर्नमेंट को भी पता चले कि ये है, ये वक्तव्य है, ये फाइंडिंग्स है, ताकि वो उस हिसाब से एक्शन ले सके. ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, अलग अलग लेवल्स पे होना चाहिए. ओके, लॉन्ग टर्म विजन में ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आउटरीच का. तो अमीर, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि एक तो थोड़ा पॉलिसी के ऊपर अगर ये नेटवर्क, मतलब जिस सेंट्रल इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं, जिसमें जैसे इसमें महाराष्ट्र भी है, छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश भी है, और ये हो रहा था ना कि कंपनसेशन मध्य प्रदेश में इतना है, छत्तीसगढ़ में इतना है, महाराष्ट्र में इतना है. तो अगर हम वो पॉलिसी एडवोकेसी ये नेटवर्क करें तो हर किसी एक चीज़ के लिए कुछ चीज़ें तो मतलब कॉमन हो, कि वो सबके लिए हो. क्योंकि
ऐसा नहीं है कि लोग इधर या उधर से परिचित नहीं है। ये पूरा जो बेल्ट है और सारे लोग कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हैं। हम कॉरिडोर्स की बात करते हैं तो लोगों का भी तो कॉरिडोर बना होगा, ये सिर्फ एनिमल कॉरिडोर थोड़ी। तो एक तो वो पॉलिसी की बात है, मुझे लग रहा है कि पॉलिसी के ऊपर थोड़ी बातचीत होनी चाहिए। और दूसरा ये कि रिसोर्सेस, मतलब जो इस पे काम कर रहा है, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन रिसोर्सेस नहीं, दूसरा इंफॉर्मेशन नहीं है, लिंकेजेस नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म या जो अवसर सबको मिल रहे हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सोचना चाहिए। और ये एक हम लोग मतलब ये जो स्वामी भी बोल रहे हैं कि ये मिलने की जो प्रक्रिया है ये थोड़ी जल्दी हो या कुछ नियमित अंतराल में हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। So, आपने पॉलिसी एडवोकेसी की बात करी और लैंडस्केप में इतने सारे स्टेट्स भी है तो इंटरकनेक्टेडनेस भी होना चाहिए। शालिनी, आपका क्या ख्याल है? I think the majority of stakeholders of this landscape are here, right from the grassroots people to the government. And I also saw yesterday there were people representing Forest Department and who understand what NCCI is doing in this landscape as well. And then we have the entire coalition where you have different partners. I got to know about, unfortunately very late, I am the first time participation here. So I got to know about it just last year and I was not so sure like काम कहाँ तक विस्तृत रूप से हो रहा है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ डिस्कशंस ऐसे होते हैं जब रिसर्चर्स या कम्युनिटीज बैठ के आपस में करते हैं, और जैसा मेरे दूसरे सहभागियों ने भी बात की कि जब तक उसका शोर बाहर तक ना पहुँचे, अगर मुझे नहीं पता कि NCCI क्या कर रहा है तो शायद मुझे कभी नहीं पता रहेगा, बिकॉज मैं इस लैंडस्केप में पिछले 10 साल से हूँ और मेरी अंडरस्टैंडिंग जो मुझे काम दिया जाता है उसके हिसाब से जो सेक्टोरल स्पेशली गवर्नमेंट में पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जो पार्टनरशिप्स हैं और उनके क्या कंसर्न्स हैं, दे आर ऑलवेज बीइंग, एंड आई शुड नॉट बी लाइक प्रोजेक्टिंग देम एज गुड बॉयज, दे हैव बीन ऑलरेडी हाईलाइटेड एज बैड बॉयज, स्पेशली माइनिंग पीपल। बट उसके साथ ही साथ ये समझना भी जरूरी है कि देयर आर नीड्स ऑफ दिस कंट्री एज वेल। जब हम क्लाइमेट जस्टिस की बात कर रहे होते हैं और जब हम बोल रहे होते हैं कि हमारे सर्वाइवल इमिशन शुड बी रिस्पेक्टेड अगेंस्ट द लाइफस्टाइल इमिशन हैपनिंग, तो जो सर्वाइवल इमिशंस की बात जो हो रही होती है और जो यहाँ पर हम एक बहुत ही डेमोक्रेटिक अप्रोच के साथ बात करें जहाँ पे मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स आर फ्रॉम इवन इन दिस पैनल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, तो आई थिंक NCCI ने वो काम तो ज़रूर किया है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके सबके पर्सपेक्टिव को, और शायद अगर इसके की जो टेक अवेज जो यहाँ से निकल रहे हैं, जैसे कि बार बार सहाना और पूजा बात कर रही है कि आपने ये कीवर्ड बोला, दैट्स इम्पॉर्टेंट, अगर ये यहाँ से निकल कर एक फ्रेमवर्क के साथ, क्योंकि गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड है कहीं ना कहीं कि और साथ ही साथ कॉर्पोरेट भी इंटरेस्टेड है, लेकिन उनको शायद बताने वाले ही नहीं है कि करना क्या है। केदार इज ऑलरेडी वर्किंग इन सम ऑफ द कंपनीज, तो उनको भी इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ठीक है विजिबिलिटी अगर चाहिए वी कैन गिव द विजिबिलिटी, बट द थिंग इज दे शुड नो कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है, दे नीड टू बी पार्टनर टू दिस एंड दे शुड अंडरस्टैंड। तो NCCI has definitely developed that entire forum in last few years, and I hope that this will be really helpful for many of us who really want to try that how these silos can be broken down and how we can come together and bring those solutions to the right table. Thank you. थैंक यू शालिनी। सो शालिनी ने कीवर्ड्स की बात की, तो ये आखिरी कीवर्ड है इस पैनल डिस्कशन का कि शोर बाहर जाना चाहिए। तो अभी शोर तो नहीं सुनना है आप लोगों से, बट आप क्या हैंड्स रेज कर सकते हैं, हाथ उठा के ये बता सकते हैं कि आर यू इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग अ राउंड टेबल फॉर रेस्टोरेशन इन द सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप। शोर नहीं चाहिए, बट हाथ उठा के बताइए हु इज इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग अ राउंड टेबल फॉर रेस्टोरेशन इन द सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप। प्लीज होल्ड दैट ऑल दैट एंड होल्ड ऑन योर हैंड्स देयर। Thank you all for raising your hands and शोर मचाने की जरूरत है अब, and a round of applause for all our discussants here.
Like that is a strategy, that is holistic. And I just feel like there could be some way that we can convince the government to do what they've committed on an international platform. Is the question directed at someone specific? Not sure. Whoever wants to. So I'll just talk about the target of restoration. So I was not participating in Kunming Montreal Protocol, this Global Biodiversity Framework. But what I could see was, because our organization was also invited to comment on restoration percentage. So if you see the major part of this negotiation among the governments happened, how much should be enough? Because they also have to see how much they could do with the other developmental priorities they have. So I should not say that's one of the very strongest thing that has come out, but definitely not a very weaker framework. But like others have also mentioned yesterday also, I feel concerned a bit sitting from the other side. And I feel concerned with the same concern where the things are diverted and the things are happening. And then there are some movement happening where people have some intentions to help for restoration. So I think this will be again a bigger challenge, and we know we are really great players in failures of not keeping the promises. So I don't represent that promise group, but I think coming from somewhere where this discussion happens, I think the percentage was the question. They promised something, but I'm not so sure. Like we promised something for the last 10 years, and then it's 10 more years. So how this is going to be done? To like talk about climate change this time, and we are in the position at international platform to negotiate. Earlier we wasn't in the position as a country. So if we are on a position to negotiate at international platform, so how we can, like, if we convey the seriousness to the like people who are working with the community or community, so translate it to the people and how we can translate it into the action. एंड जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है वो कंबाइंडली सबसे है, बट बेसिकली आप लोगों से हैं जो कम्युनिटी के साथ मतलब एकदम अंदर तक आप लोग काम कर रहे हैं, वहाँ से बिलोंग करते हैं. तो जैसे शालिनी ने भी बताया था कि क्लाइमेट चेंज के बारे में लोगों में अवेयरनेस नहीं है. आई वर्क लाइक मेरा काम था कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के ऊपर, मेरी पीएचडी का काम उसी पे है. तो मैंने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी एस्टिमेट किया, उसके बाद मैंने सोशल सर्वे भी किया कि लोगों में क्या प्रिपेयरनेस है, क्या अवेयरनेस है अगर कोई नई पॉलिसी वहाँ पे आए तो उनमें इस बात की जानकारी है. जैसे कि वो डायरेक्टली नहीं बताते कि ये क्लाइमेट चेंज है, वो डायरेक्टली नहीं जानते हैं, बट वो ये जानते हैं कि हम पहले दाल उगाते थे, अब दाल नहीं उगती है, बरसात में इतना चेंज आया है, तापमान में इतना चेंज आया है, और वो कंसर्न भी है इन चीज़ों के लिए. बट हाँ, उनको अपनी लाइवलीहुड मतलब उनका जो रोजगार है वो साथ साथ में चलता रहे. तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से हम क्लाइमेट मतलब जो पर्यावरण की बात भी करें और लोगों की लाइवलीहुड की बात भी करें, उनको हम किस तरह से ज़्यादा कन्विंस करें? थैंक यू. जितना मुझे समझ में आया कि आपका क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट निगोशिएशन की अपॉर्चुनिटी के बाद कैसे उस चीज़ों को ग्राउंड पे लोगों को ट्रांसलेट कर रही है. तो मेरा जो ये ट्रांसलेशन है आपका, ये अगर आप इसको समझते हैं कि कैसे वो ग्राउंड लेवल पॉलिसीज बना रही है सो दैट लोकल लोग भी उसमें इन्वॉल्व हों, तो आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ सच पॉलिसीज दे आर रियली हाईलाइटेड. अगर आप उज्ज्वला योजना को लें तो किस तरीके से लोगों का फ्यूल पे डिपेंडेंस कम किया जा सकता है, या जिस तरीके से एलपीजी सब्सिडी प्रोवाइड. ये ज़रूर केस है कि बहुत सारे लोगों तक अभी भी ये चीज़ें नहीं पहुँची हुई हैं, लेकिन आप बहुत सारे ऐसे एफर्ट हैं जिनको आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हो रहे हैं ग्राउंड पे, जिसमें से बट अगर आप ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया निगोशिएशन की पावर के बावजूद कैसे लोगों को कन्विंस करे कि आपको एनडीसी मीट करना है, तो ये लोकल लोगों की प्रायोरिटी नहीं है. शायद लोकल सोशो इकोनॉमिक्स को एड्रेस करना गवर्नमेंट की पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि वो पहला लेवल है अडेप्टेशन जनरेट करने का. और आप गवर्नमेंट कुछ करे या ना करे, लोग तो अडेप्ट कर रहे हैं. इफ़ यू गो इन द फार्मिंग सेक्टर एंड यू सी कि कैसे लोग अगर जर्मिनेशन नहीं होता है तो बहुत सारे एरियाज में लोग सोकिंग के बाद सीड सोइंग कर रहे हैं, so that they have some germinated seed, and so those kind of adaptation are coming. So it's not
government is doing something. Those adaptation are very much part of community, because these communities have been living with this uncertainty of climate, not now, for ages. If you call about their agriculture has been always rain-fed, more or less. If they don't have directly कोई river या नाला आसपास नहीं है, तो वो uncertainty के साथ उनको रहने की आदत है. उसके बहुत सारे examples हैं. यहाँ पे बहुत सारे millets के फार्म जो संस्थाएं काम कर रही हैं वो थी. वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. आज millets वापस लाए जा रहे हैं बिकॉज गवर्नमेंट को लगता है ये प्लानट फ्रेंडली एडेप्टिव एग्रीकल्चर है, बट कम्युनिटीज को किसी ने नहीं सिखाया था कि ये प्लानट फ्रेंडली एग्रीकल्चर है. ये ऑलरेडी हो रहा था और बहुत ज़्यादा जनरेशन से हो रहा था और एक सस्टेनेबल वे में हो रहा था. लेकिन इसमें बहुत कुछ और भी कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व हैं और जो यहाँ पर एड्रेस की जा सकती हैं, यहाँ से बाहर एड्रेस की जा सकती हैं. बट let us not think that our government is so ignorant that they want to deny these local concerns. तो वो effort भी हो रहे हैं. With the developmental need that this country has, there will be definitely ups and downs. And we have to understand, and that's why it becomes really, really complex to understand. क्योंकि अगर हम बोलते हैं हमको माइनिंग नहीं चाहिए, हमको पावर नहीं चाहिए, तो पहला चीज़ तो यही होना चाहिए कि हमको ऐसे घरों में रहना शुरू करना चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है. उस वक्त हम राइट्स की बात करते हैं. बट व्हेन इट बॉइल्स डाउन टू कम्युनिटीज, वी पुट ऑल द ओनर्स ऑन द कम्युनिटी. कम्युनिटी के लिए क्या हो रहा है? यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी. पीपीपी मोड पे निजी कंपनियों, निजी हाथों में देना चाहिए रिस्टोर करने के लिए. सबको जानकारी हमारी ले जाएगा भाई. हाँ, वो नहीं करना चाहिए. प्लीज, पैनल डिस्कशन है. मैंने जस्ट, चूंकि ये न्यूज़ बहुत बड़ी है सर, हम चर्चा नहीं करें तो इसका मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट चर्चा नहीं कर रही है. उनका प्रपोजल है, एमपी गवर्नमेंट सबमिट किया है, वो भले ही है हम करें, लेकिन ये चीज़ राष्ट्रीय वन नीति में ये चीज़ झलक रही है कि आगे चल के हमारे फॉरेस्ट को पीपीपी मोड पे निजी कंपनियों को रिस्टोर करने के लिए दिया जाएगा. हमारा क्या मानना है सर? नहीं, मतलब इसके साथ मेरा क्वेश्चन रिलेटेड भी करना हो. मेरा शालिनी के साथ एक सवाल है. 2030 में तो गोल फिक्स कर दिया. इंडिया में कहाँ हो रहा है, मीन्स टॉप डाउन अप्रोच हो रहा है, बॉटम अप अप्रोच क्यों नहीं है? सेकेंड क्वेश्चन है, ग्राम सभा का जो पावर था, पहले गवर्नमेंट ग्राम सभा के पावर था, अभी ग्राम सभा को पावर कट कर दिया. थर्ड क्वेश्चन हमारे कन्वर्जन प्रोसेस कहाँ है? आज का एनआरएलएम का एक सूत्र है जहां पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्शन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में 13 सूत्रों का एक सूत्र है. तो मेरा ये 3 सवाल का टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप्रोच क्यों नहीं हो रहा है? ग्राम सभा का कहाँ, पेशा एक्ट कहाँ है? रेस्टोरेशन का बात बोल रहा है, लेकिन ग्राम सभा को वायलेट करके आप बोल रहा है. पहले गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट ने ग्राम सभा का पावर दिया, नेक्स्ट गवर्नमेंट ग्राम सभा का पावर नहीं है, तो रेस्टोरेशन कहाँ होगा? तो इसलिए सेंट्रल इंडिया में हम लोग 33 डेवलपमेंट एनजीओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव एसोसिएशन नेटवर्क बनाया. उसका चेयरमैन हम ही हैं. तो उसमें क्या है, हम लोग हर विलेज लेवल में ग्राम सभा के थ्रू रेस्टोरेशन प्रोसेस में हमने चालू किया. तो शालिनी आप तो बात कर रहे, तो मेरा टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, कन्वर्जेंस, ग्राम सभा, पेशा कहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर देगा तो अच्छा है. क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, इसका कारण है क्योंकि मैं उस लेवल पे नहीं बोल बैठती जहाँ पे मैं आपको बता सकूँ कि गवर्नमेंट क्यों टॉप डाउन अप्रोच पे बिलीव करती है और बॉटम अप में नहीं करती है. और सिमिलरली ये दूसरा प्रश्न जो इससे पहले उठाया गया था कि फॉरेस्ट को प्राइवेट सेक्टर के पास देना चाहिए तो कि रेस्टोरेशन कर सके, तो मुझे नहीं लगता इस पूरे पैनल में कोई भी केपेबल है इस आंसर को देने के लिए कि हमारा क्या ओपिनियन है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा ओपिनियन कितना काउंट करता है वो बहुत महत्वपूर्ण है. तो लेट अस नॉट एक्सपेक्ट कि इफ आई कम फ्रॉम अ सर्टेन बैकग्राउंड आई हैव द आंसर्स कि क्यों दिल्ली में बैठी हुई सरकार टॉप डाउन सोच रही है और बॉटम अप नहीं सोच रही है. I sit like any other citizen of this country, and I was sitting for last
1.5 days in the same site, hearing what are the concerns, and we also face a similar kind of concerns. So I may not be the right person to give these broader appropriate answer to these broader questions, and I certainly feel, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिसर्च में जो हम भी जो देखते हैं कि इंडिया में रिस्टोरेशन फेलियर का एक बहुत बड़ा रीजन है कि कन्वर्जेंसी नहीं है। जो वाटरशेड डिपार्टमेंट कर रहा है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है, कई बार वो एक जैसी चीजें कर रहे होते हैं पर उनकी आपस में बात नहीं होती। तो वो जो साइलोज वाला पूरा एक अप्रोच है वो यहाँ पर भी है। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे नहीं पता कि आप जो 33 संस्थाओं की बात कर रहे हैं वो एग्जिस्ट करती है, मुझे नहीं पता है। मुझे नहीं पता होता कि एक बहुत बड़ा रिसर्च ग्रुप है जो NCCI के थ्रू इज रियली ट्राइंग टू वर्क इन दिस एरिया। इट वाज ओनली वेरी रिसेंटली आई गॉट टू नो कि भाई ऐसा कुछ मूवमेंट जैसा अप्रोच चल रहा है, एंड व्हाट आई ब्रिंग इन आई कैन जस्ट कंट्रीब्यूट टू इट। I may criticize, I may appreciate, and that comes from a very, very personal level. So it doesn't come from what government's approach is and how should I back up government's approach of top-down or bottom-up approach. I hope I'm not very much appropriate in what I answered because I'm not actually capable to answer that big question. Yeah, it's a wonderful session with all these learning, research and everything. But at the same time, the meaning of restoration and the vision for restoration, it's there for everyone. Like when we speak with the government system, researcher, communities, civil society organization or CSR also. These days they are speaking a lot about climate change. So everyone has a vision, but at the same time there is a need to integrate or simplify a restoration for all of them, and where we can sit together and discuss ideas. एंड मैं भी जब हम बात कर रहे थे स्केल डिजाइन का भी कि सिंप्लीफिकेशन वाटर स्केल बहुत बार समझाना नहीं पड़ता है, तो क्या रिस्टोरेशन को लेके इस प्लेटफॉर्म ऐसा कोई सिंप्लीफाई कर सकता है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकता है, सोल्यूशन लेके आ सकता है जिसपे सबका जो विजन के साथ कनेक्ट करने में NCCI या CIL मदद करे। सो इफ we will do it together. Okay, we have some important announcements. We're closing the panel. Thank you so much for sticking with us, family.